Hello students, this is the second part of the video that is related with the chromatin and chromosome. First part में हमने डिस्कस किया था इसके बेसिक्स, क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम्स का बेसिक क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके अलावा डीएनए क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, उसके नंबर, उसका शेप, साइज, ये हम सब जो इसका फर्स्ट वीडियो है पार्ट 1 उसमें डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज द पार्ट 2 दैट विल लीड विद द some other advanced concepts related with the chromatin and chromosomes, and further we will move to the some basic, some interesting facts related with the chromatin and chromosomes. Now we will going to deal with the chromatin. Chemical composition of the chromatin consists of DNA, RNA and protein. तो क्रोमेटिन वर्ड जो है उसमें हम डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन तीनों की बात करते हैं. द प्रोटीन ऑफ क्रोमेटिन कुड बी ऑफ टू टाइप, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन. तो प्रोटीन जो है वो हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन दोनों तरह की हो सकती है. हिस्टोन प्रोटीन की बात हम यूकैरियोटिक जो क्रोमोसोम होता है उसमें करते हैं, जबकि नॉन हिस्टोन प्रोटीन की बात हम जो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स होते हैं वहां पे देखते हैं. डीएनए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट chemical component of the chromatin since it plays central role in controlling the heredity and is most conveniently measured in the picograms में. तो DNA जो है वो बहुत important component होता है chromatin का and central role in controlling heredity and that is most conveniently measured in the picograms. In addition to describing the genome of an organism by its number of chromosomes, it is also described by the amount of the DNA in a haploid cells. This is usually expressed as the amount of the DNA per haploid cells. यूजुअली जो होती है, हम एक हैप्लॉइड सेल में बात करते हैं इसकी, द नंबर ऑफ द किलो बेसिस पर हैप्लॉइड सेल्स एंड इज यूजुअली कॉल्ड सी वैल्यूज. तो जितना ज़्यादा डीएनए है हम कहते हैं उसकी सी वैल्यू जो होती है उतनी ज़्यादा होती है. दिस इज कॉन्स्टेंट फॉर ऑल द स्पीशीज. फॉर अ डिप्लॉइड सेल इट इज़ 2C. अगर हम एक सिंगल जीनोम के लिए बात कर रहे हैं, सिंगल क्रोमोसोम डीएनए के लिए बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं C. लेकिन अगर हम डिप्लॉइड सेल के लिए बात करें तो वी विल कॉलिंग इट लाइक 2C. Now we are going to extending this C value that is known as the C value paradox. C value paradox, what does it mean? It means that it is not always related with that the increasing of the C value with the complexity of a genome or complexity of the characteristics of an organisms. Like हम किसी भी डीएनए कंटेंट जितना ज़्यादा है हम ये नहीं कह सकते कि उसमें उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है. ऐसा हमेशा सही नहीं होता. इस सी को हम क्या कहते हैं? सी वैल्यू पैराडॉक्स कहते हैं. One of the immediate features of the eukaryotic organisms highlights a specific anomaly that detected early in the molecular research. Even though eukaryotic organisms appear to have 2 to 10 times as many as genes of the prokaryotes, they have many orders of the magnitude more DNA in the cells. ठीक है, तो जितने ज़्यादा यूकैरियोटिक सेल्स में क्या डीएनए का अमाउंट उतना ही ज़्यादा है. Furthermore, the amount of the DNA per genome is correlated not with the presumed evolutionary complexity of a species. This is stated as C value paradox. The amount of the DNA in the haploid cells of an organism is not related to its evolutionary complexity. ये हमें मैंने अभी I've discussed this कि जितना ज़्यादा DNA है हम ये नहीं कह सकते कि organism उतना ज़्यादा complex है. Lower eukaryotes in general have less DNA such as nematode, C. elegans, which has 20 times more DNA than the E. coli. Vertebrate have a greater DNA content, about 3 picogram in general, about 700 times more than E. coli. तो हम ये कहते हैं कि अगर हम डीएनए कंटेंट की बात करते हैं तो ई कोलाई में और सी एलिगेंस में 20 टाइम्स का डिफरेंस है. वर्टिब्रेट में और ई कोलाई में जो है 700 टाइम्स का है. सैलामेंडर में जो होती हैं 84 पिकोग्राम जो है ज़्यादा होता है. तो इस तरह से जो है हम इस कॉम्प्लेक्सिटी को रिलेट नहीं कर सकते हैं कि जितनी ज़्यादा डीएनए उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, ये नहीं होता. हिस्टोन प्रोटीन्स जो होती हैं वो बेसिक प्रोटीन्स होती हैं जो कि डीएनए के स्टेबिलिटी से रिलेटेड होती है. एक्चुअली ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये आपके पॉजिटिव अमाइनो एसिड से मिलके बनी हुई होती हैं. डीएनए हमें पता है कि कैसा होता है, आपका नेगेटिवली चार्ज होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट group that is lying just external surface to the DNA. phosphate ion जो हैं वो present होते हैं and due to this phosphate ion that is present in continuous, तो क्या होगा, एक continuous phosphate group या continuous negative charge होने की वजह से उसमें repulsion होता है. चार्ज सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. तो इसको बचाने के लिए डीएनए में क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं और ये बेसिकली प्रोटीन्स कहते हैं कैसे होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज होती हैं. तो इसकी वजह से इनमें
ये अटैच रहती हैं, जो कि इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करती हैं। दे फॉर्म द हाईली कंडेंस स्ट्रक्चर। द हिस्टोन आर ऑफ 5 टाइप्स कॉल्ड, यहाँ पे जो हिस्टोन्स होती हैं वो 5 तरह की होती हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, विच आर वेरी सिमिलर अमंग द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द यूकैरियोट्स। तो इसमें हम देखते हैं कि H3 प्रोटीन्स जो होती हैं वो हाईली कंजर्व्ड प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। H1 प्रोटीन्स जो होती हैं ये वेरिएबल प्रोटीन्स होती हैं। H3, H4 जो होती हैं ये हाईली कंजर्व्ड होती है। कोई भी चीज इवोल्यूशन में कंजर्व्ड वो होगी जो कि जिसमें कोई चेंज जो है वो कोई भी पर्टिकुलर स्पीशीज टॉलरेट नहीं कर सकती। अगर वहां पे चेंजेस हो गए तो वो स्पीशीज जो होती है वो अपने आप को टॉलरेट नहीं कर पाएगी। Non-histone proteins में in addition to the histone, the chromatin comprises of many different type of non-histone proteins which are involved in a range of the activities including DNA replication and gene expression. They display more diversity that are not conserved. They may also differ between different tissues of the same organisms. यहाँ पे आप देख सकते हैं डीएनए हेलिक्स दिखाया हुआ है। डीएनए हेलिक्स जब प्रोटीन के साथ में एसोसिएट हुआ तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ कंडेंसेशन हुआ, जिसको हम न्यूक्लियोसोम्स कह रहे हैं। न्यूक्लियोसोम्स में फिर फर्दर कंडेंसेशन होता है जिसे हम सोलिनॉइड्स कहते हैं। सोलिनॉइड्स से फिर कॉइल्स बनती हैं और ये कॉइल्स जो होती हैं ये फिर फर्दर क्रोमोसोम्स को बनाती हैं। ये एक्चुअली न्यूक्लियोसोम मॉडल कहलाता है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, इसके अरेंजमेंट को लेके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डुप्लेक्स, डीएनए डुप्लेक्स। पहले हम इस स्लाइड को देखेंगे। यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट है, 8 हिस्टोन कोर्स प्रेजेंट है। हमने कहा कि आपके 5 टाइप्स की होती हैं, जिसमें से H1 प्रोटीन को छोड़ के बाकी जो भी थी H2A, H2B, H3 एंड H4 ये एक कॉम्प्लेक्स बनाती है और हर एक जो प्रोटीन्स है इसके 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी हम कहते हैं डायमीटर ऑफ ईच हिस्टोन टाइप ऑफ प्रोटीन। तो कितने हो गए? ऑक्टामर, यानी 8 यूनिट्स हो गए। 4 प्रोटीन्स हैं, उनके सबके दो पार्ट होंगे तो वो 8 प्रोटीन्स में बदल जाएगा। और इसके चारों तरफ जो होती है वो हिस्टोन रैप्ड रहती हैं। H1 प्रोटीन जो होती है ये लिंकर प्रोटीन्स होती हैं, 2 न्यूक्लियोसोम्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपका क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसोम्स। यहाँ पे जो आपके लेफ्ट साइड में जो दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीएनए जो है वो 2 नैनोमीटर का यहाँ पे है। 2 नैनोमीटर से फिर बाद में जब न्यूक्लियोसोम के चारों तरफ जब ये रैप होता है तो 11 नैनोमीटर की स्ट्रक्चर बनती है। 11 नैनोमीटर न्यूक्लियोसोम्स सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज ऑफ 30 नैनोमीटर। और यहाँ पे इसमें क्या है, धीरे धीरे पैकिंग जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, यानी पैकिंग रेशियो जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। इसके बाद में हम देखते हैं 30 नैनोमीटर जो है वो 300 नैनोमीटर में बनता है। 300 नैनोमीटर, देन 700 नैनोमीटर एंड 1400 नैनोमीटर। तो जब क्रोमोसोम होता है जो हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में होता है, दैट इज ऑफ 1400 नैनोमीटर। पैकिंग रेशियो जो होता है वो इसका 14 टाइम्स जो है वो ज्यादा होता है। 700 टाइम्स जो है वो पैकिंग रेशियो बन जाता है। तो 200, ये आपको बिल्कुल सीक्वेंस में याद रखना है कि पैकिंग का जो ऑर्डर है वो किस तरह से चलता है। 2 नैनोमीटर, 11 नैनोमीटर, देन 30, 300, 700 एंड 1400, ये आपको याद रखना है। तो न्यूक्लियोसोम की जो स्ट्रक्चर है उसमें 8 हिस्टोन प्रोटीन्स जो कि कोर के फॉर्म में प्रेजेंट है। डीएनए रैप्ड है उसके चारों तरफ। 1 हिस्टोन होल्डिंग द न्यूक्लियोसोम टुगेदर, उसको हम क्या कहते हैं? लिंकर हिस्टोन कहते हैं। इसके बाद में सोलिनॉइड मॉडल आता है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल 10 नैनोमीटर फाइबर ऑफ द न्यूक्लियोसोम गेट कॉइल्ड अपॉन इटसेल्फ टू फॉर्म द 30 नैनोमीटर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो 6 न्यूक्लियोसोम्स होते हैं ये आपस में रैप होकर के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं solenoid structure. This 30 nanometer structure is called solenoid. It has 5 to 6 nucleosomes per helix. The histone N-terminal tails direct the DNA to wrap around the histone octamer. These N-terminals are thus required for the formation of 30 nanometer fiber as they interact with the adjacent nucleosomes by making multiple H bonds. तो यहाँ पे मल्टीपल एच बॉन्ड्स के थ्रू ये यहाँ पे 30 नैनोमीटर का स्ट्रक्चर बनता है। तो न्यूक्लियोसोम जो है बीड लाइक स्ट्रक्चर होती है विच इज अ सेगमेंट ऑफ द डीएनए दैट इज रैप्ड अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन्स के चारों तरफ ये रैप रहते हैं। एट गुड कंपैरिजन इज द थ्रेड विच इज रैप्ड अराउंड द स्पूल, ठीक है। और दिस हेल्प टू कीप द डीएनए कॉम्पैक्टेड, डीएनए के कॉम्पैक्शन में काम आता है। हिस्टोन प्रोटीन है प्रोटीन विच डीएनए इज रैप्ड अराउंड एंड फॉर्म द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कॉल्ड न्यूक्लियोसोम्स। तो हिस्टोन जो होती है यहाँ पे चीफ प्रोटीन्स होती हैं और ये हमने बताया ये स्ट्रक्चर्स होती है बीड्स ऑन स्ट्रिंग, रेफर्स टू द लुक लाइक स्ट्रिंग्स जो हैं वो डीएनए के चारों तरफ डीएनए के ऊपर रखे हुए। इस तरह से लगता है कि डीएनए के ऊपर हमने बीड्स रखी हुई हैं, लेकिन होता है कैसे? ये स्ट्रिंग्स ऑन बीड्स, बीड्स ऑन स्ट्रिंग्स नहीं कहते, हम इसको स्ट्रिंग्स ऑन बीड्स कहते हैं एक्चुअली।
इससे पहले हम एक स्लाइड को डिस्कस करना चाहेंगे, दिस वन। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 नैनोमीटर स्ट्रक्चर है। एट द सिंपलेस्ट लेवल क्रोमेटिन इज अ डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ये 2 नैनोमीटर का इसका इन्होंने बताया हुआ है, इसका जो डायमीटर है। यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड, डीएनए इज कॉम्प्लेक्स विद द हिस्टोन टू फॉर्म द न्यूक्लियोसोम्स। तो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर बने दैट इज न्यूक्लियोसोम्स। ईच न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ विद हिस्टोन प्रोटीन अराउंड विच द डीएनए रैप्ड 1.65 टाइम्स। तो डीएनए जो है वो कितना है इसमें 1.56 है, यानी एक जो राउंड है वो कंप्लीट होता है और दूसरा राउंड जो है वो इनकम्प्लीट है, वो 0.65 ही है। ठीक है, इसके बाद में H1 लिंकर्स जो होते हैं इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो फोर्थ लेवल में क्रोमेटोसोम्स का स्ट्रक्चर बनता है। तो क्रोमेटोसोम जो होते हैं उसमें क्या होता है, न्यूक्लियोसोम और हिस्टोन प्रोटीन, इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, क्रोमेटोसोम्स कहते हैं। थर्ड जो होती है उसमें न्यूक्लियोसोम्स आती हैं फॉर टू प्रोड्यूस 30 नैनोमीटर फाइबर। तो यहाँ पे क्रोमेटोसोम्स जो होते हैं वो 30 नैनोमीटर फाइबर का स्ट्रक्चर बनाती हैं। इसके बाद का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक लूप बनता है जिसमें 300 नैनोमीटर लेंथ जो होती है वो डीएनए की कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में आता है आपका 300 के बाद में 30 के बाद में 300 देन 700 नैनोमीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 200 नैनोमीटर, देन जो इनकी जो डायमीटर दिखाया हुआ है वो 700 एंड 300 एंड 700 एंड देन 1400 नैनोमीटर। तो टाइट कॉइलिंग हो जाती है, उसका पैकिंग रेशियो जो होता है वो इंक्रीज होता रहता है। तो 30 नैनोमीटर फाइबर्स आर कंप्रेस्ड एंड फोल्डेड टू प्रोड्यूस 250 नैनोमीटर वाइडर फाइबर्स एंड टाइटली कॉइल्ड ऑफ द 250 नैनोमीटर फाइबर प्रोड्यूस द क्रोमेटिड ऑफ ए क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे हमने एक क्रोमेटिड ऑफ क्रोमोसोम की बात की है। इसके बाद में हम देखते हैं कि क्रोमेटिन जो वर्ड होता है उसमें दो हम बातें करते हैं, यू क्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन कैसे होते हैं, लाइट स्टेन्ड होते हैं, रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन के लिए ये एक्टिव पोर्शन होता है। व्हेन स्टेन्ड विद द बेसिक डाई आर कॉल्ड यू क्रोमेटिन एंड कंटेन सिंगल कॉपी ऑफ जेनेटिकली एक्टिव डीएनए। Chromatin condensation varying during the life cycle of the cells and plays an important role in regulating the gene expression। क्योंकि ये क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव पार्ट होता है। यहाँ पे आपके क्या होता है, एसिटाइलेशन प्रोसेस रहता है। तो जहाँ जो आपका एक्टिव रहता है मीन्स जो थोड़ा सा लूजली बाइंडेड रहता है, जहाँ से कि क्रोमोसोम जो होता है वो ओपन हो सकता है फॉर डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। इन द इंटरफेस ऑफ द सेल साइकिल क्रोमेटिन आर डीकंडेंस्ड एंड नोन एज यू क्रोमेटिन। तो यू क्रोमेटिन क्या होता है, डीकंडेंसेशन प्रोसेस होती है जिससे कि वहां पे फिर फर्दर डीएनए जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन या रेप्लिकेशन कर सकता है। हेटेरोक्रोमेटिन पोर्शन वो होता है जो कि हाईली कॉइल्ड फॉर्म में रहता है। ये बेसिकली मिथाइलेशन प्रोसेस से रिलेटेड होते हैं। जहाँ पे भी डीएनए मिथाइलेटेड रहता है वहाँ पे डीएनए की कॉइलिंग जो होती है वो हाई रहती है। तो आपका जो सेंट्रोमियर पोर्शन होता है उसको भी हम क्या कह सकते हैं, दैट इज हेटेरोक्रोमेटाइज्ड पोर्शन ऑफ द क्रोमोसोम, जहाँ पे की कॉइलिंग बहुत ज्यादा होती है और वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव रहता है, वहां पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। तो क्रोमेटिन आपका सेंट्रोमियर जो होता है वो क्या होता है, कोई अलग से पोर्शन उस पर अटैच नहीं होता है। दैट इज द मोस्ट कंडेंस्ड पोर्शन ऑफ द क्रोमोसोम जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। Constituted heterochromatin is found in the region that flank the telomeres and centromere of each chromosome and the distal arm of the Y chromosome in the mammals। तो यहाँ पे हमने पोजीशन देख रहे हैं हेटेरोक्रोमेटिन की क्या क्या हो सकती है। टेलोमेयर्स पे हेटेरोक्रोमेटिन प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन टेलोमेयर्स आपके जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन में पार्ट करते हैं। Constitutive heterochromatin possesses very few genes and also lead to transcriptional inactivation of the nearby gene. This phenomena of gene silencing is known as position effect। ये आपको इसके बाद में आता है आपका डोजेस कंपनसेशन। डोजेस कंपनसेशन होता है इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इन बोथ मेल एंड फीमेल इन डिफरेंट स्पीशीज। ये हमें पता है कि मेल और फीमेल अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग तरह से चलता है। जैसे XX XY वाला जो सेक्स डिटर्मिनेशन पोर्शन होता है ये मैमल्स में चलता है, जबकि फिशेज में, बर्ड्स में अलग चलता है। तो इस तरह से क्या होता है कि एक्स क्रोमोसोम का नंबर मेल में और फीमेल में अलग होता है। फीमेल में जहाँ 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वहीं मेल में सिंगल एक्स क्रोमोसोम होता है। तो इन एक्स क्रोमोसोम का पार्टिसिपेशन जो है वो इक्वल रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेल में जो एक्स क्रोमोसोम से जो जीन्स हैं उनका पार्टिसिपेशन ज्यादा हो मेल के कंपैरिजन में। तो इसको कंपनसेट करने के लिए जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है या जो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है वो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो अलग होता है। तो यहाँ पे जो दोनों एक्स क्रोमोसोम की डोजेस को कंपनसेट करने का रखा जाता है, तो इसे हम डोजेस कंपनसेशन कहते हैं। Centromere are those condensed region within the chromosome that are responsible for the accurate segregation of the replicated chromosome during the mitosis and meiosis। माइटोसिस, मियोसिस बहुत ही 2 बेसिक
बेसिक प्रोसेस है जिसमें कि क्रोमोसोम्स जो है वो सेपरेट होते हैं, फिर से यूनाइट होते हैं। तो वहाँ पे जो सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होती है, क्रोमोसोम की जो स्प्लिटिंग होती है वो कहाँ से होती है, सेंट्रोमियर होती है। व्हेन द क्रोमोसोम आर स्टेन्ड दे आर टिपिकली शो अ डार्क स्टेन्ड रीजन इन दैट सेंट्रोमियर। द एक्चुअल लोकेशन वेयर द अटैचमेंट ऑफ द स्पिंडल फाइबर अकर इज द काइनेटोकोर एंड इज कंपोज्ड ऑफ बोथ डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए सीक्वेंस विद इन द रीजन इज कॉल्ड सेन डीएनए। सेंट्रोमियर में जो था उसको हम सेन कहते हैं। तो यहाँ पे जो है CD1, CD2 एंड CD3 ये 3 तरह के रीजन्स होते हैं, अलग अलग इनमें कॉम्पोजिशन रहता है। म्यूटेशन इन द फर्स्ट 2 सबडोमेन हैव नो इफेक्ट अपॉन द सेग्रीगेशन, बट अ पॉइंट म्यूटेशन इन द SED3 सबडोमेन कंप्लीट एलिमिनेट द एबिलिटी ऑफ द सेंट्रोमियर टू फंक्शन ड्यूरिंग द क्रोमोसोम सेग्रीगेशन। तो इनमें अगर किसी भी तरह का मूवमेंट म्यूटेशन हो जाते हैं तो क्रोमोसोम की फंक्शनलिटी पे अफेक्ट आता है। इसके बाद हम स्पेसिफिक जो क्रोमोसोम्स होते हैं, 2 स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है आपको, उसके बारे में देखते हैं। देयर इज जेंट क्रोमोसोम्स। Some cells at a certain particular stage of the life cycle contain large nuclei with giant or large sized chromosomes, polytene और Lambrish chromosomes। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटीन क्रोमोसोम्स की। जेंट क्रोमोसोम जो थे सबसे पहले बाल्बियानी ने डिस्कवर किए थे इन द कायरोनोमस लार्वी ऑफ डिप्टेरिया। However, he could not conclude them to the chromosomes। उनको कुछ एबनॉर्मल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आई थी जिन्हें उन्होंने क्रोमोसोम्स नहीं कहा था, बट दे वर द क्रोमोसोम्स, और इनको हम पॉलिटीन क्रोमोसोम्स कहते हैं। Polytene chromosomes was proposed by the Collet due to the occurrence of many chromonemata। क्रोमोनेमेटास जो हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। सेल्स इन द लार्वल salivary gland of the Drosophila, mosquito and Chironema contain chromosomes with higher DNA content. However, they may also occur in Malpighian tubules, rectum, gut, foot pads, fat bodies, ovarian nerve cells में। Polytene of the giant chromosomes happen to replicate of the chromosomal DNA several times without nuclear division, and the resulting daughter chromatids do not separate but remain aligned side by side। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी क्रोमोसोम्स होता है उसमें रेप्लिकेशन तो होता है, लेकिन रेप्लिकेशन के बाद का जो प्रोसेस होता है जिसमें सेग्रीगेट हो जाते हैं 2 क्रोमोसोम्स, वो वाला पोर्शन जो है वो यहाँ पे नहीं होता है, और जितने भी जो भी डॉटर क्रोमेटिड्स बनते हैं वो सारे एक साथ अटैच रहते हैं। तो जो रिजल्टिंग क्रोमेटिड्स होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं। ड्यूरिंग एंडोमाइटोसिस द न्यूक्लियर एनवेलप डज नॉट रप्चर एंड सो स्पिंडल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे पॉलिटीन क्रोमोसोम जो होता है उसे हम कहते हैं जहाँ पे कि आपका रेप्लिकेशन तो हो रहा है लेकिन सेग्रीगेशन जो है क्रोमोसोम्स का वो नहीं होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोमोसोम्स में पफ प्रेजेंट है, डार्क बैंड और लाइट बैंड जो है वो प्रेजेंट है। तो डार्क बैंड की जो बीच की स्पेस है उसको हम इंटर बैंड कह रहे हैं। क्रोमोसोम की एक्सिस प्रेजेंट है जहाँ पे कि क्रोमोसोम जो है हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। इसके अलावा कुछ लूप्स प्रेजेंट है। ये लूप्स जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव पोर्शन होता है जहाँ पे कि क्रोमोसोम जो है वो ओपन हो चुका है फर्दर ट्रांसक्रिप्शन या रेप्लिकेशन प्रोसेस के लिए। इन्हें हम लेटरल लूप्स भी कहते हैं। They are about 100 times thicker, contain 1000 to 2000 chromosomes than the chromosome found in most other cells of the organisms। तो इस तरह से इनमें जो वेरिएशंस होता है 1000 to 2000 क्रोमोसोम जो होते हैं वो ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। A series of dark and transverse bands alternate with clear zone of the interband. Such individual band can be correlated with a particular genes। About 85% of the DNA in the polytene chromosome is in the band and the rest 15% is in interbands। तो मेनली जो होते हैं वो बैंड्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं क्रोमोसोम्स। In Drosophila melanogaster there are about 5000 bands and 5000 bands and 5000 interbands per genome। तो यहाँ पे these are the chromosome puff known as Balbiani rings। Puff may appear and disappear depending on the production of specific proteins। तो puff जो है जो lateral loops होते हैं उनमें वेरिएशंस आ सकते हैं क्योंकि वो आपका ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव पोर्शन है। जिस भी पर्टिकुलर टाइप की प्रोटीन्स की सेल को रिक्वायरमेंट होती है वो वाला पफ जो होता है वो फर्दर एक्टिवेट होता है। और ये जो पफ्स होते हैं इसमें प्रोटीन और आरएनए भी जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द डीएनए, बट टू सपोर्ट दिस डीएनए देयर आर प्रेजेंट प्रोटीन्स एंड आरएनए अलोंग विद दैट डीएनए। इसके बाद आता है आपके लैम्ब्रुश क्रोमोसोम्स। लैम्ब्रुश क्रोमोसोम्स को सबसे पहले फ्लेमिंग्स ने डिस्कवर किया था। ब्रश जैसी स्ट्रक्चर होती है एक, इसलिए इसको लैम्ब्रुश क्रोमोसोम्स कहा गया। और ये आपके oocytes में प्रेजेंट होते हैं। सैलामेंडर oocytes जो होती है वहां पे प्रेजेंट होते हैं।
ये भी सेम जो है आपके रेप्लिकेशन प्रोसेस तो होता है, सॉरी डिवीजन प्रोसेस होता है, रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है, लेकिन फर्दर स्प्लिटिंग जो है वो नहीं होती है और सारा का सारा जो क्रोमोसोम है वो एक साथ प्रेजेंट रहता है. Their transitory structure can be observed during the diplotin stage of the prophase 1 in the meiosis in the oocyte of all the animal species, both vertebrate and invertebrate. They have been described in the sepia. Several species of insect, shark, amphibian, reptiles, and birds and mammals. Lambert's chromosome have also been found in the spermatocytes of the several species, giant nucleus of the acetobularia, and even in plants. Generally, they are smaller in the invertebrates and than vertebrates. They are observed in the oocyte because oocytes are higher in the DNA content. तो oocytes में क्या होता है, DNA का अमाउंट जो है वो ज़्यादा होता है. एक्चुअली यहाँ पे DNA भी प्रेजेंट होता है और RNA भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि आपके जो गैस्ट्रुलेशन स्टेज है, गैस्ट्रुलेशन स्टेज में जो है एक्चुअली में डीएनए जो है वो स्टार्ट होता है, जीन्स जो है वो एक्टिव होते हैं और रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है. इससे पहले जितना भी आपका प्रोटीन्स होते हैं वो ऑलरेडी फॉर्म्ड होते हैं, प्री फॉर्म्ड प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम इन्फॉर्मोसोम्स कहते हैं. तो दोज मैसेंजर आरएनए दैट आर प्रेजेंट and those are carried by the female. These messenger RNA are only responsible for production of protein in the developing zygote till the gastrulation stage. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये ब्रश जैसी स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं और लूप्स यहाँ पे भी प्रेजेंट है, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के स्ट्रक्चर है. सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं दे विल नेवर गेट सेपरेटेड. तो इस तरह से क्या होता है कि एक कॉम्प्लेक्स ब्रश जैसी स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप हो जाती है. Lambert's chromosomes are functional for studying chromosome organization and genome function during the meiotic prophase. Lambert's chromosomes are clearly visible in the light microscope. They are organized into a series of chromosomes with a large chromatin symmetrical loop extending laterally. The majority of the DNA, however, is not in the loop but remain highly condensed in the chromomeres on the axis and lack the expression of the genes. तो यहाँ पे क्या होता है, जो लूप्स में जो डीएनए होते हैं वो भी कैसे होते हैं, वो हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में रहते हैं और जितना ज़्यादा हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में रहते हैं उतना ही वो ट्रांसक्रिप्शनली या एक्सप्रेशन के फॉर्म में इनएक्टिव रहते हैं. लूप्स परफॉर्म इंटेंस ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द हेटेरोजेनस आरएनए. ईच लेटरल लूप इज कवर्ड बाय द एसिमेट्रिकल मैट्रिक्स ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्ट्स thicker at one end and loop than other. The number of the pairs of the loop gradually increase during the meiosis till it reaches maximum at diplotin. तो डिप्लोटिन स्टेज तक जो है धीरे धीरे इनमें इंक्रीज आता है, ग्रेजुअल इंक्रीज. एज मियोसिस प्रोसीड फर्दर नंबर ऑफ द लूप्स ग्रेजुअली डिक्रीज एंड द लूप्स अल्टीमेटली डिसअपीयर ड्यू टू द रीअब्जॉर्प्शन इनटू द क्रोमोसोम और डिसइंटीग्रेशन. कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के अगर हम देखते हैं क्रोमोसोम्स में, अगर हम पूरी एक इंडिविजुअल के डीएनए को खोलते हैं, इफ अनफोल्ड द डीएनए इन ईच सेल्स न्यूक्लियस वुड बी 2 मीटर लॉन्ग. 2 मीटर लंबा होता है एक डीएनए जो है आपका. कितने बेस पेयर्स होता है, 2.4 मिलियन बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, 6.4 मिलियन बेस पेयर्स होते हैं. ह्यूमन हैव एस्टिमेटेड 100 ट्रिलियन सेल्स, हम कहते हैं इतनी सेल्स प्रेजेंट होती हैं. तो अगर हम इसको देखते हैं तो कितना ज्यादा निकलता है, 200 बिलियन किलोमीटर्स. ठीक है, यानी हम कहें अर्थ और सन के डिस्टेंस जितनी है उसका भी 1000 टाइम्स बड़ा क्रोमोसोम हमारी जो है पूरी सेल, पूरे इंडिविजुअल की हम कंपेयर करें तो इतना बड़ा क्रोमोसोम जो है हमारी उसमें प्रेजेंट होता है. या हम कहें अर्थ के जो है आप चारों तरफ अगर लपेटोगे किसी एक इंडिविजुअल के क्रोमोसोम को तो वो उसके 4 चक्कर जो है वो लगा सकता है. इतना बड़ा हमारा क्रोमोसोम जो होता है वो होता है. और इसको कंडेंसेशन जो प्रोसेस होता है वो इतना अच्छा, इतना कॉम्पैक्ट होता है कि उसकी वजह से ये क्रोमोसोम जो है वो हम न्यूक्लियस जैसी बहुत ही छोटी जगह में इसको हम अक्यूमुलेट कर सकते हैं. जीन्स फॉर द सेम फीचर्स अपीयर इन द सेम लोकस ऑन ईच मैचिंग पेयर ऑफ द क्रोमोसोम इन एवरी ह्यूमन बॉडी सेल्स. The 23rd pair, chromosome pair in the human decide what sex you are, and the sex chromosome are called X or Y. So we know that there are 23 pair of the chromosomes, out of which 22 pairs of chromosome are known as autosomes, and one pair, that is the last pair, 23rd pair, is the sex chromosomes, and there are 2 chromosomes X and Y. In some rare cases people are born with 1 extra chromosomes. तो कुछ इस तरह की चीजें चलती है जिसे हम नॉन डिसजंक्शन कहते हैं. जब माइटोसिस या मेयोसिस का जो प्रोसेस चल रहा होता है उस वक्त जो है वो क्रोमोसोम्स में जब सेपरेशन होता है, कुछ भी एबनॉर्मलिटी अगर सेपरेशन प्रोसेस में हो जाती है तो फिर इंडिविजुअल जो है उसमें आपको सिंड्रोम्स जो है वो देखने को मिलते हैं.
It takes about 8 hours for one of your cell to completely copy its DNA. So these are some interesting facts related to the chromosome and chromatin. We have gone through all the basic concepts and detailed concepts with some interesting facts. I hope आपको ये सभी clear हुए होंगे. Thank you.